بلوچستان میں قائم دنیائے اردو کی سب سے بڑی درسگاہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن گزشتہ دنوں کینیڈا تشریف لائے۔ ان کی آمد پر ممتاز دانشور، محقق، نقاد اور معروف شاعر ڈاکٹر سید تقی آبدی نے اپنی رہائش گاہ پر عشائیہ دیا۔ اپنے وسیع و عریض لائبریری کا دورہ کرایا اور لائبریری میں موجود تاریخی کتب کے متعلق معلومات فراہم کی۔ ڈاکٹر تقی آبدی کی اس نجی لائبریری میں انتہائی نادر اور نایاب کتب کا ذخیرہ موجود ہے، جن میں صدیوں پرانے قلمی نسخے بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر تقی خود بھی اب تک 74 کتابیں تصنیف اور تالیف کر چکے ہیں۔ اس موقع پر 2 کتابوں کی رونمائی بھی کی گئی۔ پہلی کتاب قرطاس امانت تھی، جس میں ڈاکٹر سید تقی آبدی نے باقر امانت خانی کے 36 مرثیوں پر 38 مضامین کے ذریعے جدید مرثیے کے خد و خال بیان کیے ہیں۔ باقر امانت خانی کے صاحبزادے حسن امانت خانی نے یہ کتاب وائس چانسلر سید عین الحسن اور ڈاکٹر تقی آبدی کو پیش کی، جبکہ دوسری کتاب معروف شاعر نند لال نیرنگ کی منتخب شاعری گلشن نیرنگ سرحدی تھی۔ اس کتاب میں بھی ڈاکٹر تقی آبدی کے درجنوں مضامین شامل ہیں۔ یہ کتاب نند لال نیرنگ کے بیٹے نریش نیرنگ سلیم نے مہمان اور میزبان کو پیش کی۔ ڈاکٹر تقی آبدی نے انتہائی تحقیق کے بعد بال مکند بے صبر کی کتاب گلستان ہند ترتیب دی ہے۔ یہ تصنیف منشی بال مکند بے صبر سکندر آبادی نے 1871 میں سہارنپور میں تکمیل کی تھی، جس کا واحد نسخہ مخطوطے کی شکل میں ڈاکٹر تقی آبدی کی نجی لائبریری میں موجود ہے، جو انہوں نے مہمانوں کو پیش کی۔ اس موقع پر شعیب ناصر نے اپنے سفرنامے سفر خوش گزرے کی کاپیاں محترم مہمان جناب سید عین الحسن صاحب اور سید تقی آبدی صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ اس موقع پر نند لال نیرنگ کے صاحبزادے نریش نیرنگ سلیم، باقر امانت خانی کے فرزند حسن امانت خانی اور پوتے ہاشم امانت خانی، مولانا احمد علی، جعفر صاحب، شاہد ہاشمی، بشارت ریحان، خورشید آبدی، ایوب خان، عبدالحمید حمیدی، شعیب ناصر اور پروفیسر سید عین الحسن کے بھتیجے بھی موجود تھے۔ قبل ازیں پرتکلف عشائیہ کا اہتمام تھا۔ آئیے اس لائبریری میں چلتے ہیں اور ڈاکٹر تقی آبدی اور پروفیسر عین الحسن کے انتہائی معلوماتی گفتگو سنتے ہیں۔ 900 کے قریب ہیں، اس میں کچھ ڈسپلیس کیا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، یہ پہلی کتاب ہے جو لندن میں چھپی ہے، اخوان الصفا۔ یہ چھپی ہے 1861 عیسوی دارالحکومت لندن میں چھپی ہے۔ مگر مزے کی کتاب یہ ہے کہ جو انگریز پڑھا ہے، ہر ایک اردو کے لفظ پر اپنی انگریزی لکھا ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کس مشکل سے پڑھا ہے؟ ہاں ایوب، دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے آپ کے جنات کی متوجہ کے بعد تو یہ لندن میں چھپی ہے۔ یہ 1861 یعنی 180 سال، تقریباً 170 سال کے قریب ہو رہی ہے، لیکن پڑھنے والے کی میں داد دے رہا ہوں۔ کسی نے اس میں جو ہے انگلش ٹرانسلیشن کر دیا ہے۔ جی بالکل اس طریقے سے۔ اچھا، یہ جو جم الماجد جو وہ تھے، آپ کی جو یونیورسٹی ہے اس میں جو سیکشن پورا بنایا گیا ہے وہ جم الماجد، اس زمانے میں ہم نے آپ کے جو ہے انوالو تھے ہم، تو آپ دیکھیے یہ جم الماجد نے مجھے فری کر کے بتایا ہے، یہ ناسخ کا دیوان ہے۔ اس میں آپ یہ اصل کاغذ ہے اور یہ گودا بھر گیا ہے اس کے اطراف۔ تو یہ اب میر تقی میر کی جو ہے ناصر تاریخ وفاتش نویش وابیلا مرد شہ شاعران 1285، تو یہ بھی پرانا تھا بہت ایسا جیسے، لیکن اس کو میں نے جمل ماجد نے مجھے کہا کہ آپ کی پوری لائبریری کی میں فری وہ کر کے دوں گا۔ اب دیکھتا ہوں میں
تو یہ ہمارے خاندان کا پرانا نسخہ تھا تو میں نے حاصل کر لیا. لیکن اصل چیز اور ایک یہ ہے کہ یہ دیکھیے یہ کلیات بالمکن صبر ہے. یہ جو غالب کے شاگرد ہیں یہ مجھے ایک پرانی دکان سے ہاں پورے چیزیں تو میں مسلسل یہ دیکھیں مخمس غزلیات مصحفی اور یہ غالب کے شاگرد تھے. 5 خط غالب کے ان کے نام ہیں. یہ بھانجے تھے ہرگوپال تفتہ کے. ہرگوپال تفتہ کے دیکھیے 38 قصیدہ مصممی باب بخا توحید. تو یہ ہندو تھے مگر آپ کے جو ہے غضب کے شاعر اور غضب کے آپ کے جو ہے شریف شخص کے مگر ان کے ڈاکٹر صاحب مخطوطہ ہے یہ مخطوطہ یہ سو مخطوط ہے. یہ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ میرے پاس 900 کے قریب یہ چیزیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں شخصی کسی کے پاس اتنے نہیں ہوں گے. بالکل نہیں ہو گیا. آپ دیکھیے یہ حملہ حیدری دیکھیے یہ کتاب دیکھیے یہ حملہ حیدری جو ہے بہت ہی یہ اس میں آپ ہم لوگ شاعری میں جو ہے وہ کرتے ہیں. ایک شخص نے 64,000 شعر لکھے حضرت علی کی شان میں. یعنی ایرانیوں کے کام دیکھیے آپ کی یہ حضرت علی کی شان میں پوری جو ہے یہ حملہ حیدری 64,000 شعر ہیں. یہ دیکھیے یہ شاعر جو ہے آپ کے مولانا یہیں کے ہیں آپ کو مصطفیٰ حزب اللہ. ذکر محارب حیدر کرار بکنائے وہ تمام لشکر اشرار یہ پورا. مگر اس کو میں بنانا چاہتا ہوں اگرچہ کہ مل جاتی ہے یہ اب کے جو ہے کئی بعض جگہ پر. لیکن کام دیکھیے 64,000 آپ کے جو ہے شعر لکھنا آسان نہیں ہے. یا یہ مثنوی مانوی وغیرہ کی جو چیزیں ہیں اور پہلی جو پرنٹ ہوتی تھی ہمارے کلکتے میں وہ دیکھیے دیکھیں ایوب آپ سامنے تو اسکالر ہو دیکھیں یہ اس کا ریفرنس دیا تھا میرے پاس بھی ہے یہ. اچھا یہ تقریباً آپ کے جو 130 سال پرانی ہوگی. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ہوگی بہت زیادہ ہوگی. شروع کی ہے منشنبل اس میں تاریخ آگے ہوگی آپ کے لیے. شروع کی ہے منشنبل کشور کے جو پریس ہوا ہے. یہ دفتر ہے 4 و 5 و 6 میں درج ہوا. تو یہ مثنوی یہ لیکن یہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرسٹ ایڈیشن یہ فارسی کی ہیں. کتابوں کے تحفظ کے لیے مخطوطات کے آپ کبھی ایران جائیں تو وہاں آیت اللہ نجفی کی جو ہاں مریشی صاحب کی ٹور دیا ان لوگوں نے ایک دن مجھے پورا بتایا آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ مریشی صاحب کا جو کتاب خانہ ہے وہ دنیا میں بالکل آپ کے یا پھر کتاب خانہ خود سے رضوی. ہاں دونوں آپ کے نہیں دونوں جگہ میں اقبال ہی نے آپ کے اسرار رموز رکھا. اسرار و رموز جی اس کے بعد اسرار مگر زندگی میں چینج کیا انہوں نے. اسرار خود ہی کر دیا. اس پر ہے آرٹیکل. اسرار خود ہی کر دیا. اقبال نے بہت سی چیزیں چینج کی ہیں. یعنی خود یہ جو بال جبریل ہے یہ بھی آپ کے جو ہے چینج ہوا ہے. بدلتے تھے بڑے آپ کے جو ہے چیزیں. لیکن کمال یہ ہے کہ 42% کا کلام جو انہوں نے نکال دیا تھا ہم نے باقیات میں نوی باقیات میں لا لیا. 42% کلام اقبال نے نکال دیا اس وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ لپٹے ہوئے تھے لکھنؤ کے اور دہلی کے کہ آپ کا محاورہ غلط ہے. آپ کا اس کا شعر ہے اللہ کیا مزہ ہے کلام انیس میں دشمن بھی گر پڑے تو زباں پر مزہ رہے. کم از کم 50 کتابوں میں لکھا ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے کلام وحید
करते ही दाल दब रही है आपके जो बाहर में बैठता है। मैंने कहा दबिस्तानी हनीस में कभी दाल नहीं दबती, दाल गलाते हैं वो लोग। दम है इतना उन लोगों में, समझ रहे? तो कहना पड़ता है। तो अब हर एक आजकल इंटरनेट ताशुक मेरा ख्याल है कि बड़ा परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट, इसी वजह से ताशुक के देखिए काबे में बैठ के काबे की जो है रदीफ में जो कसीदे लिखे हैं, मदीने में बैठकर जो मदीने की आपके जो है रदीफ में जो कसीदे लिखे हैं, तूस में बैठकर जो तूस की आपके जो है वो लिखे हैं, ये कमाल है और नयापन था। नयापन है कि आप हर एक रदीफ में काबा ला रहे हैं, हर एक रदीफ में मदीना ला रहे हैं, हर एक रदीफ में तूस ला रहे हैं, हर एक रदीफ में आपके जो है क्या कहते हैं मक्का ला रहे हैं। ये चीज आपके जो है ये कमाल है। ये यानी शायरी पर इन लोगों का तसल्सल था। आइए उस तरफ चलते हैं। असली लाइब्रेरी तो मिसाइल को लाइक नहीं करते थे। फिर शिबली ने 57 साल की उम्र में जो है इतना काम किया कि 57 अंजुमनें नहीं कर सकी। शिबली का मसला ये है, शिबली ने बेदिल के साथ जो काम किया, शिबली ने गालिब के साथ जो काम किया, शिबली ने दबीर के साथ जो काम किया, मुआजना उन्होंने लिखा, मुआजना दबीर, ठीक है, उसमें गलती की उन्होंने गलती की। वही मकसद है। नहीं मकसद फन्नी गलती भी है ना। आपने वहाँ गालिब एकेडमी में सही टोका था। ये सब लगा के शिबली ने लग दिया जेर कदम वालिदा फिर जेर कदम वालिदा फिर है नहीं, वो अम्मा की इताअत ना करूं मैं तो बुरा है, जेर कदम वालिदा फिरदो से ओला है। ये बेदिल का शेर ही नहीं है, बेदिल का शेर नहीं है, ये मोहम्मद तकी घासी का शेर, ठीक है। नमूना बरदारी गलत की, देखिए। अच्छा वाकई, अच्छा ये फिर किसका है? जेर कदम वालिदा फिरदौस। सुनते हैं माँ के पाँव के नीचे। वो नहीं है, वो जो तकी घासी साहब का नहीं, वो तकी घासी का है, वो मोहम्मद तकी घासी का है उनके आपके जो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं इसमें जो है ये जो आपको मिलेंगे, ये मैंने पूरे 40 साल जमा किए हैं। ये एक ये इसकी सेकंड कॉपी नहीं मिलेगी, तो इसी वजह से चाहता हूं कि इसकी हिफाजत हो जाए। अब आने वाली नस्ल देखे इसे इसमें, और असल जो है वो पीछे जो आप देख रहे हैं ना, ये मैं बताऊं आपके, ये दुनिया में कहीं आपको नहीं मिलेगा कि वेबस्टर की ये डिक्शनरीज जो हैं, ये 1798, ये पूरी डिक्शनरीज वेबस्टर्स की हैं, ये पूरी आपके जो है समझे। तो ये देखिए, आप खोलेंगे इसमें, जैसे ये खोलें आप तो यहाँ मिलेगा कि गैरी जो है उसको उस जमाने में पढ़ा है, इसको निकलसन ने पढ़ा है, इसको आपके जो है ये पूरे 200 साल और 200 साल से पुरानी आपके ये काम जबरदस्त। ये पूरा जो है वेबस्टर के लिए जो है ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। ये मैंने आज से 40 साल पहले एक ग्लासको स्कॉटलैंड में 4 पाउंड में खरीदे थे, उसके बाद इजाफा किया आपके जो ये तो ये चीज जो है कहीं आपको नहीं मिलेगा। ये चीज जो है, अब आप देखिए ये है ना, ये सुनो इधर आइए देखो, ये कब का है? ये जनवरी 24 1801, 222 साल पहले इसने लिखा अपना नाम, ठीक है। 22 आप देख रहे हैं 200 एंड या जनवरी 24 देख रहे हैं आपके जी। ये जो है इनके उसमें थी नूरा उस जमाने में, तो ये 200, तो इस किस्म की जो हमारे पास ये चीजें हैं, ये नूरा शोए जो है एक नॉवेलिस्ट। अच्छा नॉवेलिस्ट खदीम है जी, मैं नहीं जानता। अच्छा आप पता है मैंने, अरे तो उसकी मैंने तो और कीमत बढ़ गई इसकी, और कीमत बढ़ गई इसकी। वेबस्टर की मैंने 4,500 की डिक्शनरी खरीदी, जो आप दिखा रहे हैं ना, ऐसा हो रहा था जी, बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या किया है, शाहनामा नहीं मालूम उन्हें, लंदन में सबसे ज्यादा काम शाहनामे पर हो रहा है, और वो दिखा रहे हैं जो शाहनामे की जो फोटोग्राफ्स कहीं मिल जा रही हैं, उसको बता रहे हैं कि ये ऐसा हुआ था और ये फला जगह है, ऐसे हुआ। तो उसका
महाराज बहस में यही ले आते हैं और बाकी तो उनको आती नहीं। उनसे हमने पूछा एक से, डू यू नो पर्शियन? बताइए। बिल्कुल होशियारी कर रहे हैं ये लोग। नहीं, मगर कहना हूँ ग्रामर और सेटिक्स की किताबें हैं ये भी। अब यहाँ पर आपकी वाइस चांसलर साहब, आपकी मौजूदगी से 3 काम करना है हमको आपके जो है। एक ये कि बाखर अमानत खानी साहब की किताब की जो है, ये पूरी किताबें मेरी हैं, ये बास किताबें मेरी हैं, ये किताबें मेरी। तो आपके दस्ते मुबारक से हम अपनी लाइब्रेरी में ऑफिशियल तरीके पर आप आइए, आपके जो है शामिल हो जाइए। शाहिद भाई, क़िबला आइए। जगह कम है यहाँ पर, मगर जो है एक जगह इस तरीके से आपके जो आ जाए। आपके जो है पहली मर्तबा हो रही है ये गुलशन रंग। हाँ, ये तो तामीर बखा दूसरी है वो आपके, हाँ उसी के वो ये आ जाए शोएब भाई, आप भी चले। अमीरी भाई चले चले। मैंने 6 तस्वीरें बनाई। आइए, ये मुजस्सम साथ से बनाया। आइए देखिए, ये जो है जम्मू का एक सिंह है, जो ये मीर तकी मीर, ये इंशा, ये मैंने बनवाए हैं आपके 6। ये 6 शायरों के मैंने बनवाए हैं। ये जो है इंशा है किताबों से निकाल कर। वो मीर तकी मीर है, ये तो गालिब थे। और ये आपके जो है अनीस। और उधर जो है आपके, आप देखेंगे मुसफ़ी पर लोग बहुत वो कर रहे हैं। मुसफ़ी की जो फोटो मैंने जो स्केच बनाया है वो कमाल है। ये किताबों से गिलाफी आंखें वगैरह वगैरह आप देख रहे हैं। यानी किताब 4 लोगों के फलसफे में इन्वॉल्व हो तो वो जिंदगी भर बाहर नहीं निकल सकता। पहला शंकराचार्य, दूसरा इब्ने अरबी, तीसरा बेदिल और चौथा हेगल। एक जगह कहते हैं शंकराचार्य के बाद सबसे बड़ा जो आदमी, क्योंकि शंकराचार्य से बड़ा तो कोई आपके जो फिलोसोफर है ही नहीं, दुनिया में नहीं है। इंडियन फिलोसफी है, टॉप 3 है। वो कैलाश के मंदिर का जो गोल्ड फलसफा है, उस पे आप जाएंगे तो इब्ने अरबी वहां से अख्ज़ करता है। तो अल्लामा इकबाल का ये ख्याल। लेकिन अब आप देखिए, एक एक चीज जो है बेदिल की अजीब है। जिस तरीके से कहता है बेदिल के हमदी, बेदिल जो है कहता है कि अब मुझे क्या कहते हैं, नात कहना नहीं, अब मुझे मुनाजात और हम्द कहना आया जब, ये गिर रहा है, क्या हो रहा है ये? कर लिया वो अच्छा, जब मुझे इसमें हुजूर से आशनाई हुई। एक बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है आपके जो। नहीं, आज मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो है मेरे नोट्स में से वो चीज देखिए कि क्या चीज आपके जो है कहता है बेदिल के ज़नामे क़िबला। ये लेते जाइए आपके जो है, ये सुनिए। ज़बानम काबिले हमदे खुदा शुद, मेरी जबान हमदे खुदा के काबिल हुई। जबानम काबिले हमदे खुदा शुद के बनामे मोहम्मद आशना शुद। जब तक के बनामे मोहम्मद आशना नहीं हुई थी, मुझे जो है हमद कहना नहीं आता। उसके बाद सुनिए, दिलस तफसीर इस मस्त आगाह, क्योंकि मेरा दिल जो है हुजूर के नाम की बरकत और हर के नाम से वाकिफ है। जे रमज़े मानिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं समझा कि अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहना चाहिए, क्योंकि हुजूर जैसी शख्स आपके जो है बशर, आपके बशर के रूप में हमारे पास जो आए हैं। तो ये चीज जो है ना आपके अनीस के या दबीर या इकबाल या मीर तकी मीर के पास आपके जो है मुश्किल से मिलेंगे। तो बेदिल को समझना बहुत मुश्किल है। आप कोशिश कर रहे हैं। दरमियान एक सेकंड के लिए
آپ جاگتے ہیں یعنی سو رہے ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے نیند آپ کی جو ہے اچک ہوتی ہے, پھر سو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہہ رہا ہے بے دل کہ زندگی جو ہے یہی دو خواب کے درمیان جاگنا ہے. یعنی اس سے پہلے بھی خواب تھا, دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم خواب میں تھے, دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم خواب میں رہیں گے. یہ صرف زندگی جو ہے وہ دو خواب کے درمیان جو ہے آپ ذرا سا جو جاگتے ہیں نا ایک سیکنڈ کے لیے, وہ زندگی. گرد تخیل دو سرابس ہستی, یہ جو ہماری ہستی ہے, یہ جو ہماری زندگی ہے, دو سراب کے درمیان جو تھوڑی سی آپ کو گرد نظر آ رہی ہے وہ یعنی ادھر بھی سراب ہے ادھر بھی سراب ہے. از لطمے دو موج حبابی دمیدس, دو موجیں جب ٹکرائی ہیں تو حباب بنا. ہم لوگ جو ہیں زن اور مرد جب باہم ملے ہیں تو ایک وجود ہوا ہے. ٹھیک ہے, از لطمے دو موج حبابی دمیدس یعنی طلسم نقش برابس ہستیم, یعنی ہماری زندگی جو ہے ایک بلبلے کی طرح سے ایک آپ کے جو ہے پانی پر ایک بلبلے کے مانند ہے. دیکھ رہے ہیں, یہ ہے بے دل, یہ ہے بے دل. تو بے دل کے ساتھ بہت بڑا شاعر ہے. تو بے دل پر آپ کے جو ہے پوری طریقے سے شمع روشن می توان کرد از نوای اندر, بلبل کی آواز سے شمع کو روشن کیا جا سکتا. واہ, بھی ہے نا ایک رنگھا خفتیز یہ دل در سلائے اندر. نہیں کہا ہے مگر کوئی شاید دودھ جانے دودھ کی نہ طرح رنگ چھپے ہوئے ہیں. کیوں پر مباش, ہاں, یہ زندگی بھی نہیں ہے, یہ ایک وہم ہے 2 دن کا, اس پہ زیادہ غرور مت کر. بنیاد تو نیستیس معمور مباش, تیری بنیاد جو ہے فنا پر رکھی گئی ہے, تو جو ہے یہاں پہ کوئی تعمیر سامان 100 برس کا ہے, کل کی خبر نہیں, وہ کہہ رہا ہے. ہر چند اگرچہ کہ ابدال و خطوب و غوثت خانن, دنیا تم کو جو ہے ابدال کہے, قطب کہے یا غوث کہے, ای خاک بئیں غبار مسرور مباش, یہ غبار ہے, یہ بیٹھ جائے گا مسرور. تو آپ دیکھ رہے ہیں خیام بہت پہلے کہا اس کو. خیام نے کہا کہ یک چند اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ تر حدیثوں کو پیش نظر رکھا ہے ان شعراء نے. یک چند کودکی به استاد شدی, ہر چند کے استادی خود شاد شدی. پایان سخن بشنو کے مارا چی رسید, از خاک در آمدیم و برباد شدی. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو اسی دن برباد ہو گئے تھے, مٹی سے اب بنا آپ یہ سن لیجیے, آپ کے جو ہے حیف استو 2 روزی کے مقیم باغی, حیف ہے تجھ پہ کہ تو 2 دن باغ میں زندگی گزار رہا ہے. از بلبل غافلی حریف زاغی, تو بلبل سے تو غافل ہے اور کوے کا دوست بن گیا. صحبت ایجاب موثر اس آگاہ باش, اس دنیا میں صحبت بہت ضروری ہے. ماچن در آب روی تری, اگر تو پانی کے ساتھ رہے گا تو ٹھنڈا رہے گا. در آتش داغی, اور اگر آگ میں جائے گا تو جل جائے گا. سمجھ رہے نا. تو اب یہ چیزیں جو یہ کہتے ہیں نا آپ کے, جس طریقے سے بے دل کہتا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے 6 شعر اردو کے بھی ہیں, لیکن میں اس کے فارسی شعر کو اس وجہ سے لائک کرتا ہوں کہ اچھا وہ بڑا مزے کا ایک ہمیں کی ردیف میں کہا, ہم لوگوں کے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے لباس کی وجہ سے. اختلاف خلق بے دل در لباس افتاد است, ورنہ یک رنگ است خون در پیکر طاووس و زاغ. کوے میں اور مور میں خون ایک ہی رنگ کا ہے, صرف ان کے لباس الگ ہے. مور کا لباس الگ ہے, کوے کا لباس ہے. مگر پروفیسر صاحب, فرانس کا کوا بہت خوبصورت ہے. کبھی فرانس کا کوا دیکھا آپ نے؟ بڑا کمال کا کوا ہے. میں اتنا کوا خوبصورت نہیں دیکھا. نہیں وہ فرانس کا ہے ہی نہیں نا, شکاگو فرانس کا نہیں, ساؤتھ افریقہ کا ہے وہ. اچھا آتا ہے فرانس میں. وہ
कभी भी मुहर्रिक नहीं हो सकता। अच्छा, वो जो हम खिजालत में अपने आप को छुपाए हैं वो मुहर्रिक है। अरे वाह, ये ऐसी भी बात नहीं करता। बहुत फलसफा है वाकई में जो है। पता था उसने एक लैंग्वेज बना ली थी अपनी, फारसी और रीख्ता को मिलाकर, जिसको जटल कहते थे। इसी वजह से जाफर को जाफर जटली कहते थे। हाँ, तो जाफर जटली जो है आ गया एक मर्तबा, क्योंकि हर शाम इनके पास मुशायरा रहता था। किसके पास? बेदिल के पास। आके कहा, उस्ताद एक कसीदा लाया हूं आपके लिए। पहला मिसरा सुनाया, चे उर्फी चे फैसी जलोए तू फुस। कहते हाथ से रोक दिया। खुशबू लिखता है, उस्ताद ने, बेदिल ने हाथ से रोक दिया, जाफर हम बुजुर्गों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर बटवा खोला, 2 अशरफी निकाल के दिए जाफर को। लोगों ने कहा, हुजूर दूसरा मिसरा सुनने दीजिए, हम जानना चाहते हैं फुस का काफिया क्या बांधा। कहा नहीं सुना। तो तारीख में लिखा गया। तो बेदिल जो है कैरेक्टर था, अखलाक का हाल ये था। क्यों? माँ तो बेंगालन थी, और बाप जो है गरीब एक सिपाही। 39 साल तक खानख्वाहों में, बाज वक्त तो खुशबू कहता है, मुझसे कहते थे उस्ताद कि भूखा भी सोया। बाज वक्त आपके जो है माजूने आपके बनाकर उमराओं को बेचकर आपके जिंदगी की, हुक्मरानों के अशआर को ठीक कर कर किताबत कर कर पेट पाला। मगर जब दिल्ली आए तो शुक्रुल्लाह खान ने कहा बेटे से, शाकिर खान से, कि शाकिर इनके लिए घर खरीद। तो उस जमाने में 5,000 रुपए का घर खरीद कर बेदिल को दिया गया, और ये कहा गया कि हर रोज तुमको 2 रुपये दिए जाएंगे मरने तक। तो 2 रुपये उस जमाने में कितने होते थे? तो एक किताब लिखी गई है चिश्तिया, निजामिया चिश्तिया का, कि उस जमाने में एक खानखा होती थी, उनका नाम था कलीम चिश्ती देहलवी। उनकी सबसे बड़ी खानखा थी, सदियों से लोग आते जाते खाते पीते रहते। तो उसका खर्चा रोजाना 2 रुपये था। तो वो 2 रुपये दिए जाते थे किसको? इनको। 4 बीवियां थी, एक मर गई थी, 3 जिंदा, और 2 माजूने अपने लिए तैयार कर लिए थे। एक का नाम याजूद माजूद, एक का नाम मौजी या औजी मौजी। हाँ, खुशबू ने लिखा जाड़ों में औजी खाते थे, और आपके जो है गर्मियों में आपके जो है मौजी खाते थे। बच्चे नहीं हुए। 63 ईयर के जब हुए तो एक बेटा नसीब हुआ, मगर वो बेटा 4 साल चला उसका मरसिया देखने का। 4 साल के बाद मर गया वो। तो इनका अपने घर के अंदर एक चबूतरे में अपनी खबर बना ली थी, और उसी में दफन हुए। और वो बेदिल, आपको मालूम होना चाहिए कि असल में इस कदर उनको हाथी पेश किया गया। फारूक शेर ने कहा कि आपके लिए मैं हाथी, आप तो, और उसको चांदी की जंजीर से बांधकर, तो हाथी तो नहीं लेने गए, लेकिन इनके शागिर्द जाके जो है वो 2,000 रुपये जो थे उस जमाने में, वो 2,000 रुपये ले आए आपके, ताकि जो है लोगों को दिया जाए। तो वो आदमी था बेदिल। खुशबू कहता है डॉक्टर साहब के सुबह जाते अपने कमरे में, लिखते पढ़ते रहते, शाम में जो है दरवाजा खोलते और आपके जो है मुशायरा शुरू होता, और मुशायरे में सबसे पहले अपना कलाम सुनाते, और उसके बाद एक उंगली से इशारा करते किसी की तरफ कि आप सुनाएं। जिसकी तरफ उंगली का इशारा होता वो सुनाता, और अगर उसके शेर में कुछ मसला होता तो वहीं पर उसको जो है उसकी सलाह कर देते, यानी तस्सीह कर देते। यानी वो मायूब नहीं समझा जाता था कि लोगों के दरमियान आप ये कह रहे हैं। आजकल तो हमारा जनाब सदर जो है क्या करता है, पहले तो जो है हमारा जनाब सदर देखता ही नहीं आपके जो है। वो सागर खयामी, नाज़िर खयामी के मरने के बाद उनके भाई सागर आए मुशायरे में, उन्होंने कुछ कही थी, नज़में अच्छी कही थी।
تو دوردرشن والے بلانے لگے تھے انہیں. اس زمانے میں تو یہ سب ٹی وی تھے نہیں, دوردرشن تھا. تو دوردرشن والے ریکارڈنگ کرتے تھے اور اس کے بعد ان کے اوپر ریکارڈنگ ختم ہو جاتی تھی مہندر پر. باقی کیمرے نہیں چلتے تھے. وہ آتا نہیں تھا پھر دوردرشن میں. وہ کیمرہ لگا, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ لے رہا ہے لیکن آئے گا نہیں, ان کے اوپر ختم ہو جاتا. تو ان کو ساغر کو بار بار پبلک کہہ رہی تھی کہ ساغر کو پڑھوائیے. تو یہ خود بھی نظامت کر رہے تھے مہندر سنگھ بیدی, تو ان کو نہیں پڑھوا رہے تھے. اب خیر جب وہ دوردرشن کا کھیل ہو گیا, اب صرف کیمرہ لگا ہوا ہے, کچھ ہو نہیں رہا اس میں, تو انہوں نے ان کو بلایا. اب یہ جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہماری روایت مزاح کی نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے, وہ سب ایسے کہا. تو ساغر کو آ گیا غصہ. ان کا اے سردار, میں یہی مائی تیرے سر پر مار دوں گا. کون سا سنجیدہ شاعری کرتا ہے. اس نے خوب ان کو وہ کیا مہندر سنگھ بیدی کو. اور اس کے بعد سے پھر وہ اجڑ گیا, پھر وہ مر بھی گیا. جی اللہ ان کو حیات دے, لیکن دنیا ابھی ان کو پہچانی نہیں ہے. ان کے پاس نہ جانے کیسے کیسے ہیرے موجود ہیں. کچھ تو یہ ابھی باہر نہیں نکال رہے ہیں. وہ ان کو انتظار ہے کہ میں اس وقت نکالوں گا جب دنیا ختم ہو جائے گی. ایسی کوئی بات نہیں. اور کچھ تو یہ ہے کہ یہ جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں, جیسے میرے والد نے کہا تھا کہ پاس اپنے کیا بٹھاؤں میں کسی کمظرف کو, عقل کی باتیں کروں گا بدگما ہو جائے. تو یہ جو ہیں وہ اپنے کھول نہیں رہے, وہ گرے ہیں ان کے پاس جو موجود ہیں. لیکن میری بہت دعا ہے ان کی لمبی حیات کے لیے, اس لیے کہ ہر سال ان کا ایک نہ ایک بام جو ہے یہ پھوڑ دیتے ہیں. ابھی انہوں نے اس سال 2 بام پھوڑے ہیں. مرثیے کے اوپر لکھنا آسان کام نہیں ہے, اور باقر امانت خانی کے اوپر واقعی ان کی خوبصورت توجہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, آدھے گھنٹے کا انہوں نے ایک پروگرام رکھا تھا میرے والد کے اوپر. وہ شاید ہے بھی یوٹیوب کے اوپر ہوگا, لیکن وہ باریکیاں جو ہم لوگوں کو نہیں معلوم تھی ان کو معلوم ہوگی. مثال کے طور پر وہ یہ پکڑ رہے ہیں کہ یہ بار بار جو ہے وہ ستارہ بدر کے سامنے کیوں آ رہا ہے. دیٹ واز اے ونڈرفل ریمارک. سو ان کی جو نگاہ ہے اور جو ان کا اپنا مطالعہ ہے وہ بہت بے شک, کوئی شک نہیں. بے حد. یعنی آج میں یہ دیکھ رہا ہوں, ان کے کلیکشنز کو دیکھ رہا ہوں. میں اپنے کلیکشن سے اس کا تقابلی مطالعہ کر رہا تھا اندر, تو مجھے یہ لگا کہ نہیں, میں وہاں نہیں پہنچ سکتا. جو آپ نے کلیکٹ کیا ہے اور جو نگاہیں آپ کی ہیں, اور دوسری بات یہ سب ان کا پڑھا ہوا ہے. یاد رکھیے کہ جس آدمی نے کتابوں کو صرف جمع نہیں کیا ہے, کتابوں کا مطالعہ کیا ہے, اور ہر کتاب کے ہر صفحے پر کیا لکھا ہے, اس باب میں کیا لکھا ہے, یہ جانکاری ایک بڑے عالم کو ہی ہو سکتی ہے. ادب کے اندر ابھی میں سچ کہہ رہا ہوں, نام لیا تھا جمیل جالبی کا نام لیا تھا. بڑے نام میں کچھ ایسے ہیں, آپ خوشگو کا نام لے رہے ہیں, فارسی کا اس نے بہت قابل آدمی تھا, تذکرہ لکھا اس نے, خوشگو نے. ایسا تذکرہ لکھنا آسان کام نہیں ہے. یا پھر ہمارے یہاں ہوا کرتے تھے کچھ ایسے مالک رام جیسے لوگ پیدا نہیں ہوئے بعد میں. بڑا قابل آدمی تھا مالک رام. اسی صورت سے اگر آپ دیکھیں گے تو اب شاعروں میں جو عالم شعراء تھے اس میں انہوں نے مصحفی کے بارے میں کہا. معمولی آدمی نہیں تھا, اس لیے کہ اگر امروہہ کو یاد کیا جائے گا تو مصحفی سے ہی یاد کیا جائے گا. وہ وہاں کا سب سے بڑا پلر ہے مصحفی. یہ نسیم صاحب وغیرہ سب نکلے ہوئے سب مصحفی کے مدرسے سے نکلے ہوئے لوگ, جو بعد میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی, کہ جو ایک مشکل لفظ کے اوپر
ऐसा चिराग के ऊपर उन्होंने क्या लिख दिया है आप समझिए। बेशक तो नसीम साहब ही लिख सकते थे। रईस अमरोह भी हुए या अनिल या नसीम अमरोह भी हुए, ये बात के उनके मरसिया गो शमीम अमरोह वगैरह, ये सब के सब उसी मदरसे से मुसावी के थे। तो जो बड़े लोग हैं उन पर इनकी निगाह है और बात को लोगों ने कैसे कॉपी की उस पर नजर है। बेदिल फारसी का आदमी है, ये जो है मैं ये समझता था कि इनकी जो बेटर हाफ हैं उन्होंने कुछ फारसी इनको बताई हुई, मगर वो मुगालता था मेरा, इनका अपना रुझान है। आप देखिए शफीक कदकनी वगैरह की किताब, हसन हुसैनी की किताब इनके लाइब्रेरी में मौजूद है। मैं अभी इनके अरूज की किताबें नहीं देखी, लेकिन मैं जानता हूँ कि इन्होंने जरूर कलेक्शन किया होंगे। था वहाँ का असवर निशाद हिकमत, अली असगर अली असगर नहीं, हिकमत, वो जो वो थाई अरूजी आदमी था। तो वो सब खातिल नातिल खाल, हाँ, नातिल खाल, नादल खानलरी भी थे। ये सब फारसी और उर्दू उसको ऐसे बना के उसके बाद मानी निकालना, ये आज की दुनिया में तो इससे लोग नहीं मौजूद हैं, बहुत कम होंगे भी तो तहत शुआ में होंगे, सामने नहीं है। लिखना भी, छपाना भी, दूसरों तक पहुंचाना भी। अब इन्होंने एक सवाल किया जोश और फैज के लिए, इज वेरी क्लियर, फैज नहीं छू सकते जोश को, जोश जोश है। लफ्जें आके ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे हम इस्तेमाल क्या वो करते चार मुसरे जोश के, हाँ हुसैन जिसका अबद आशना से बात करता है, गाह गाह हकीमों से भी ये बात, यानी दुरूने पर्दे सद रंग कायनात, एक बाशऊर ज़हन का साथ साथ सजदों से खींचता है जो मस्जूद की तरफ, तन्हा का इशारा है माबूद की तरफ। तन्हा वो एक इशारा से जोश जोश है। जी, वाकई घुम खाओ घन घनान, यानी पानी की आवाजें जोश ने की है। उर्दू में ऐसी नज्म नहीं है, टप टप छड़र छड़ा थड़ा थड़ छनन छनन, घुम खाओ घन घनन घना घन घनन घनन। अब वो पूरे एक मिसरा है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस सूरमा का इसमें ग्रामी हुसैन, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो आले रजा ने उधर से आवाज दी, हुसैन तो मुसलमानों के है ना, आले रजा ने आवाज दी। एक फख्र सा महसूस हमें होता है जब कोई भी कहता है हमारे हैं हुसैन, एक फख्र सा महसूस हमें होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये कंसिडरेशन जो है आपके, बहरहाल ये ममनून हूं कि आपने हमारी इस लाइब्रेरी में, ये लाइब्रेरी ऐसी है जिसमें मैं काम करता हूं, जिसमें इसी वजह से आप देख रहे हैं हर एक किताब में बहुत सी चीजें आपको मिलेंगी। यहाँ पर मेरी जिंदगी का बहुत वक्त गुजरता है, इसी वजह से दूसरे लोग मुझसे नाराज रहते हैं कि ये आता नहीं जाता नहीं, मगर उनको मालूम है कि मैं अपने गुलिस्तान में रहता हूँ। नासिर मिल्लत ने किताबिस्तान में जो किताबें पढ़ी थी, पेंसिल से उस पर हाशिए लिख दिए। वाह, वो तो भाई किसके हवाले हो गई वो किताबें, नायाब चीज। आपको असल हम अभी अपना जो है काम करने का कमरा नहीं बताए हैं, वो आपको बताते हैं यहाँ से जो बाजू में ही है। तो आप देखेंगे आप खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। तो और फिर जो है क्या कहते हैं, आपको किताबें देते हैं। मेरा असल काम करने का जो कमरा है और जो मेरे 2 असल कमरे हैं, ये तो एक किताब है, यहाँ पर मैं आता हूँ अपने इस टेबल पर बैठकर 6-8 घंटे काम करते हैं। लेकिन हमारा एक किताब आ रही है इस वक्त, 2 काम हो रहे हैं वीसी साहब। एक ये कि बेदिल फहमी मेरी इस वक्त आपके जो है आएगी कुछ महीनों में। दूसरे ये कि जो अहम चीज है, अल्लामा इकबाल के 750 नातिया अशार हमने उनके पूरे, मैं पहला शख्स हूं जिसने अल्लामा इकबाल के पूरे अशार गिने, जिसकी तादाद इस वक्त आपके जो है 16,508 है, फारसी और उर्दू के। ठीक है, एक बार अभी तक इजाफा नहीं हुआ, अगर होगा तो होगा। तो उसमें से हमने
751 शेर जो हैं नातिया निकाले और उसको क्लासिफाइड किया है। तो वो देखने का है, वो काम है। उसका सलीस तर्जुमा भी किया है, वो एक काम है। और दूसरा आपके जो है क्या कहते हैं बेदिल फहमी, और तीसरा सेहत के मतन के साथ मीर अनीस के मरसिए मैं 7 जिल्दों में ला रहा हूँ। 2 जिल्दें आपके जो है वो 100 भी। ये 3 काम है। जिंदगी अगर वफा करे तो काम अंजाम हो जाएंगे आपके जो। देखिए मिर्जा दबीर का इतना बड़ा कलेक्शन इन्होंने कर दिया है कि अब आप रिसर्च करते रहिए, मामूली नहीं है काम। और दूसरी तरफ यह है कि आप 2 काम कर रहे हैं, दोनों हाथों से लड्डू ले रहे हैं। एक तरफ तो आप लोगों को, दुनिया को बता रहे हैं, दूसरी तरफ अपने आप आक़िबत बना रहे हैं। मोहब्बत है। ये 2 चीजें कंबाइन होके इनको जिंदा रखेंगी। ये दोनों चीजें ये हैरत अंगेज बात ये है ना कि 7-8 घंटा मरीजों को देखना और उसके बाद ये सारे अमूर अंजाम देना। नहीं, वही लोग है कि प्रोफेशन बिल्कुल अलग और उसके साथ ये इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से। और हमारे बाखर अमानत खानी साहब पर भी इस वक्त जो हमने आर्टिकल्स लिखे हैं, हमारे वाइस चांसलर साहब, इस वक्त जरूरत इस चीज की है कि उनके भी आपके जो है एक आध एमफिल और पीएचडी वगैरह हमारे उर्दू में हों। बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्योंकि बड़े अब स्कोप हैं, बड़े स्कोप स्कोप इतने हैं। और मैं निगरानकार हो सकता हूं अगर कोई भी तैयार हो। नहीं, क्यों नहीं? कि मैं बीच में मददगार हो सकता हूं। यानी अगर एक प्रोजेक्ट हो, साहब का जो बताया उसी तरीके से मैं हाजिर हूं, क्योंकि मेरे पास इतना मटेरियल है कि दे सकता हूं, उस स्टूडेंट को मदद कर सकता हूं कि वो पीएचडी या एमफिल या एमपी करे। मैं मददगार बन सकता हूं। कोई निगरानकार हो, कोई अच्छा स्टूडेंट मिले तो हम बाखर अहमद खानी का हम पर बहुत आपके जो है एहसान है। और वो मैं अपने शानों पर उसका जो है वजन एहसास कर रहा हूं। तो मैं तैयार हूं, ये काम होना चाहिए प्रोजेक्ट। देखिए उनका कमाल ये है कि सारे लोगों ने हैदराबाद के रुख कर लिया, पूरे एक तहजीब और एक उसके वजहदार। अलावा मेरा ख्याल है कि वो मजमे को खिताब करते थे और वो जो खिताब था बड़े तहजीब। और आप जानते हैं बेहतर कि जो है एक रविश है कि शुमाली हिंदुस्तान जनूबी हिंदुस्तान के लोगों की उतनी कदर नहीं करता, या वो जो आपके महाजिर होकर आते हैं दूसरी जगह से शुमाली हिंदुस्तान में, उनकी भी कदर नहीं करता। तो इस वजह से जरूरत इस चीज की है कि हकदार को हक दिया जाए। और ये चीज अहम है। बाखर अमानत खानी को इसीलिए हमने आपके जो है आपकी इजाजत से, जैसा मैंने बताया कि इस वक्त जदीद मरसिया जो है, जदीद मरसिया, जब मरसिया क्या है, मरसिया में 10% आपके शेर बयानिया होंगे, लेकिन 90% जो है बयानिया शायरी है, जिसमें तहजीब बताई गई है कि शौहर बीवी से क्या कैसे बात करे, बेटा बाप से कैसे बात करे, अखलाक किस तरीके से मुनक्किस हो। अभी आपने देखा, मैं नुक्ता पढ़ रहा था बेदिल का कि हुजूर के अखलाक की तारीफ की गई है, खुल्क की तारीफ की गई है कुरान मजीद में। और तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है इस वक्त करम जो है वो, कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ। अगर मैं हर चीज रखता हूँ वो अपने लिए है, आपको क्या दे सकता हूँ, एक ही चीज दे सकता हूँ, वो है अखलाक, वो है आपकी शख्सियत, वो है आपका एहतराम। आदमियत एहतराम आदमी, अल्लामा इकबाल कहते हैं। आज की दुनिया का मसला यह है कि एहतराम आदमी नहीं है, माई वे इज द हाईवे चल रहा है। तो इकबाल की तालीमात पूरी कहां से आई? हुजूर से आई है। मोहम्मद से वफा का नाम क्या है, अखलाक क्या है? तो वही जो वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं, मैं बहुत ममनून हूँ साहब का और हजरत साहब का और आप सबका, खास तौर से डॉक्टर तकी आब्दी का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। एक चीज सिर्फ कहूंगा बहुत ही मुख्तसर सी, ये कि जब भी हमारे घर आते हैं, मेरे बच्चे घर पे नहीं रहते, लेकिन जब उनको पता होता है डॉक्टर तकी आब्दी आ रहे हैं तो वो आ जाते हैं। जब माशाल्लाह से इनको सुनो तो सुनते ही रहो और दिल नहीं भरता। बस मैं यही कहूँगा। बहुत शुक्रिया। खालिद के साथ मेरा 14 साल का सफर था। 14 साल की उम्र थी जब मेरी उनका इंतकाल हो गया। हर एक शायर की एक इच्छा होती है कि उनका कलाम शाया हो, लेकिन वो अपनी इस हसरत को अपनी जीते ही पूरा नहीं कर सके। गरीब
मास्टर थे, 8 औलादें थी और इतने खुददार थे कि किसी से कुछ मांगते नहीं थे, किसी से कुछ नहीं मांगा। हमारे हमसाये को पता नहीं था कि आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। 3 सियासतदान जो रेवाड़ी से ताल्लुक रखते थे, राव बीरेंद्र सिंह यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं इंदिरा गवर्नमेंट के अंदर, कन्हैया लाल पोसवाल होम मिनिस्टर, खुर्शीद अहमद एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। ये उनके मुशायरों में अक्सर शिरकत किया करते थे। लेकिन उनकी इच्छा थी 1969 में जब गालिब की सेंटेनरी मनाई गई कि एक मुशायरा मैं भी करूं। मैं ये कह सकता हूं कि रेवाड़ी की हिस्ट्री में वो सबसे बड़ा मुशायरा था, सबसे बड़ा मुशायरा। जब उनका इंतकाल हुआ तो हर एक मेरी इच्छा थी कि मैं जब भी कभी बड़ा होऊंगा खुद डॉक्टर बनूं नहीं बनूं, इंजीनियर बनूं नहीं बनूं, वकील बनूं नहीं बनूं, लेकिन एक काम मैं जरूर करूंगा अपनी जिंदगी में, और वो ये है कि मैं अपने वालिद का कलाम जाया नहीं होने दूंगा, बिल्कुल जाया नहीं होने दूंगा। मुझे मालूम है कि यूनिवर्सिटी डेज के अंदर जिस स्टूडेंट ने नारंग साहब की गजल पार्टिसिपेट किया उसको हमेशा फर्स्ट प्राइज मिला। इतने आला दर्जे के शायर थे, इतना मुझे समझ थी। मैंने एक एक दरवाजा खटखटाया, उर्दू एकेडमी बस किताब भेजी, छपी मामूली सी किताब 1998 के अंदर, और उसकी कॉपी मेरे घर पे एक पोस्टमैन मेरे दरवाजे पे फेंक गया। मुझे बताया भी नहीं गया कि उनकी किताब छप गई है, जबकि मैंने लगातार चंडीगढ़ के चक्कर काटे। मैं इतना निराश हो चुका था, मैंने वो सारी किताबें उनके ब्याज बंद करके रख दी। मैंने कहा मैं इनको कभी नहीं उठाऊंगा। मेरी बेगम जब हिंदुस्तान से कनाडा हम आए तो मैं 1 महीने पहले चला आया था। मैं छोड़ आया था, मैंने उनसे बोला जो घर का जरूरी सामान है ले आना, बाकी छोड़ देना। 24-25 किलो की एक अटैची 2 अटैची मिलती थी जिसमें सारा घर का समेट करना था। मेरी बेगम ने सारा सामान जितना भी हो सकता था बेशक छोड़ दिया, लेकिन वो ब्याजें इकट्ठी करके अपने साथ अपने हैंड बैग में लाई। सूटकेस में भी रखा कि सूटकेस एयरलाइंस वाले गुम कर सकते हैं। जो काम मेरा आज तक किसी ने नहीं किया। मैं ये कहूंगा कि डॉक्टर अबीदी मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर गए। इन्होंने 3 साल लगातार इस लाइब्रेरी में बैठ के, मुझे इजाजत थी कि रात को 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सवेरे में किसी टाइम भी इनको फोन कर सकता हूं, और लगातार ये भी मुझसे बातचीत करते रहे। मैं उनका बेटा उनसे इतना वाकिफ नहीं हो सका जितना इन्होंने मुझे उनसे वाकिफ करवाया। मुझे अपनी मां का जन्मदिन मालूम नहीं था, इन्होंने मुझे उन ब्याजों में से बताया कि तुम्हारी मां इस दिन पैदा हुई थी, इस साल में। अब मुझे पता चला उनकी इंतकाल के 30-35 साल के बाद। मदर डे पे इन्होंने जो मुझे एक तोहफा दिया, वो तोहफा शायद मैं कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकता जो उन्होंने मुझे दिया। एक डॉक्टर होता है, उसकी कोशिश होती है कि अपने मरीज को नंबर नहीं दिया जाए, लेकिन ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने एक मरे हुए शख्स को बाहर लाए, पूरी दुनिया तक पहुंचाया। मैं, मेरा परिवार, हमारी फाउंडेशन इस चीज को कभी नहीं भूल सकती। 1922 के अंदर जब इनकी तामीर वका की रूनुमाई हुई, कम से कम 20-25 जगह पर इन्होंने पूरा महीना लगाकर, मैं साथ ही था, हर जगह इसकी रूनुमाई की, और जहां जहां उनकी शायरी की खुशबू फैल सकती है फैलाने की कोशिश की। ये जो बड़ा काम किया है, मैं इनकी
उम्र दराजी के लिए, लंबी उम्र के लिए हमेशा दुआ करूंगा कि ऐसे शख्स नहीं पैदा होते। वो कहते हैं बड़ी मुश्किल से होता है चमन में भी दवा पैदा। जो इन्होंने एहसान नारंग साहब पर, मुझ पर, मेरे परिवार पर किया और एक गुमे हुए शायर का पता लोगों को दिया, उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है कि मैं शुक्र अदा, कि कोई अल्फाज नहीं है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे भी मौका मिला आप सब लोगों के बीच में आपकी गुफ्तगू सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।